Hello friends, welcome to the class. Uh, as in last video, I have already told the most of the chemical properties of the amines. But in today's class, I will explain one of the most important part of the chemical properties of the amines, that is electrophilic substitution reactions given by the aniline. So let us discuss all the electrophilic substitution reactions of the aromatic amines. This is aniline. This nitrogen contain non-bonded pair of electron. And you know that the group which is already attached to the benzene ring will decide the position of the coming electrophile. So that's why how it is decided. This is lone pair of the electron on the nitrogen atom and is in alternate order with the multiple bond. This double bond के साथ में क्या है, alternate order. तो क्या करेगा, नाइट्रोजन लोन पेयर को इस तरह बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट कर देगा. That will contain double bond और ये इलेक्ट्रॉन स्वयं यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज is beared by ortho position and this will contain double bond and nitrogen bear positive charge. Now this bonded electron will shift towards here and this electron will shift here. So again negative charge is beared by the para position. So we will obtain this resonating structure in this step. Negative, double bond, double bond, double bond, NH2. And this is bearing positive charge. Now this electron will shift here and these multiple bond electron will shift towards the ortho carbon atom. So we will obtain in this step, this is a resonating structure. Negative, double bond, double bond, double bond NH2. This is positive. अगेन इलेक्ट्रॉन ये वाले दर्शित हो जाएंगे और ये वापस से नाइट्रोजन. क्या बनेगा यहाँ पे, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, सिंगल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. You can see from the all resonating structure, negative charge is beared by ortho, again then para and then again ortho. So it means NH2 group attached to the benzene ring, it will allow the coming group to attack at ortho and para position. So it is ortho para diagram. This is ortho para diagram. If any group shifts its electron towards the conjugation, it means that shows plus R effect. यहाँ पे क्या है, plus R effect. और यहाँ जो NH2 है just like OH group बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए. दैट हाईली एक्टिवेट NH2 ग्रुप इफ इट इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इट हाईली एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो लेट्स सी व्हाट आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस गिवन बाय द aniline. Now the first chemical reaction, first electrophilic substitution reaction is bromination. Bromination. This is aniline. When aniline undergo bromination with bromine water, bromine water के साथ इसका reaction. Because of its high reactivity towards the electrophilic substitution, we will obtain 2, 4, 6 tribromanil. 2, 4, 6 tribromanil. It means if we want to prepare ortho or para product, तो हमें क्या करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा ना. इसकी जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, इसका ऑप्शन आता है इसका एसाइलेशन. एंड यू नो दैट एसाइलेशन में हम कोई भी एसिड हैलाइड यूज कर सकते हैं
एसिड एंड हाइड्राइड यूज कर सकती हैं। जैसे मैंने इसका ऐसा रिलेशन करा दिया CH3COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ पायराइड, तो ये क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म दिस एमाइड NHCOCH3। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा, अब इसके साथ रेजोनेंस में आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा रेजोनेंस की वजह से, स्टेबलाइजेशन आने की वजह से, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ रहा है इस पार्ट में, तो इससे क्या होगा, NH2 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, NH2 ये नाइट्रोजन एटम जो है बहुत इजीली बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हो गई, डिक्रीज। अब इसका ब्रोमिनेशन कराएं तो किसी भी कम पोलैरिटी के सॉल्वेंट में, तो एक तो मिल जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट NHCOCH3Br प्लस एक मिल जाएगा पैरा प्रोडक्ट NHCOCH3 और ये Br। वापस से इस ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करना है तो या तो एसिड से रिएक्शन करा दे या किसी बेस से, तो फिर से मैं क्या हो जाएगा यहाँ पे एमीन ग्रुप एंड वन इज दिस पैरा प्रोडक्ट। This is the bromination part of the electrophilic substitution. Now come to the second part, that is nitration given by the aniline. Nitration. नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है, concentrate HNO3 and concentrate H2O. When aniline undergoes nitration, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे और इसके साथ साथ क्या बनेगा, इसमें बेटा प्रोडक्ट। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बेटा नाइट्रो एनिलीन and one of the product this is para nitroaminine. So now question arises that why beta product is formed, whether the NH2 group allow the coming electrophile to attack at ortho and para position. तो बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ क्यों हो रहा है, दिस क्वेश्चन अराइजेस। और बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब कोई ग्रुप इस तरह का लगा हुआ हो जिसकी वजह से -R इफेक्ट आ रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द बेंजीन होती है। तो यहाँ होता क्या है, दिस इज एनिलीन और एनिलीन जो है बहुत, ये क्या है, दिस इज ल्यूइस बेस because of containing non-bonded pair of electron और नाइट्रोजन। और जब भी नाइट्रेशन कराते हैं तो एसिड्स यूज होते हैं और एसिड से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव, ये हो गया बेस और ये एसिड, तो ये क्या करेगा, NH2 जो है वो H पॉजिटिव को एब्सॉर्ब कर लेगा और क्या बना लेगा, एनिलीनियम आयन विच इज मेटल आयन। कैसा है, विच इज मेटल आयन, because here nitrogen does not contain any non-bonded pair and nitrogen is more electronegative than this carbon, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो due to formation of aniline ion, beta product is also formed on the nitration of aniline.
Next, third electrophilic substitution reaction of aniline is that is sulfonation. Reaction is sulfuric acid. When aniline is allowed to react with concentrate H2SO. This is base और this is acid. बेस और एसिड में रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? सॉल्ट. तो ये जो H2SO4 है वो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा. ये H पॉजिटिव इससे अटैच होकर के एनिलीनियम आयन बना लेगा, ये बन जाएगा इसका NH3HSO4 एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. हीटिंग करने में क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट. तो पैरा बनेगा मेजा, दिस इज NH2 और ये SO3H. दिस इज पैरा सल्फेनिलिक एसिड. इस पैरा सल्फेनिलिक एसिड में क्या है? ये तो एसिडिक ग्रुप हो गया और ये बेसिक ग्रुप है. तो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? ये H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा, रेस्ट पार्ट विल बी अ नेगेटिव चार्ज, और इस H पॉजिटिव को ये NH2 एक्सेप्ट कर लेगा. तो क्या बनाएगा? ये NH3 दिस इज पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव. दिस इज द स्पीसीज व्हिच कंटेन बोथ चार्ज. दिस इज बाइपोलर स्पीसीज एंड एनी बाइपोलर स्पीसीज कॉल्ड ज़्विटर. इसको बोलते हैं ज़्विटर. दिस इज बाइपोलर स्पीसीज बियरिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ऑफ P3 एंड सच टाइप ऑफ स्पीसीज आर नोन एज ज़्विटर. तो ज़्विटर बनाना. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल-क्राफ्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है? किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को RH और RCOX एल्काइल हैलाइड और एसिल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl. तो अगर हेलोएल्केन यूज कर रहे हैं तो हायर कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन मिलेगा, और अगर RCOX एसिड हैलाइड यूज करेंगे तो कीटोन मिलेगा. मेन क्या है? एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट बनाने का काम करता है, हेलोजन कैरियर है. तो यहाँ क्या होगा? दिस इज एनिलीन और इसका रिएक्शन कराया किसी भी हेलोएल्केन से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl. क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 क्या है? ल्यूइस एसिड और ये ल्यूइस बेस. तो इस टाइम क्या होगा? ये दोनों मिलकर के सॉल्ट बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं है. तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय aniline. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन because aniline being Lewis base reacts with anhydrous AlCl3 which is Lewis acid to form salt, to form complex. So that's why this reaction is not given by the aniline. Not given by the aniline because aniline is Lewis base and reacts with Lewis acid, that is anhydrous AlCl3, to form
complex. So what will be the complex? This is aniline. इसका जो लोन पेयर है इसको डोनेट कर देगा किसको? एल्यूमिनियम। This is the formation of complex take place during Friedel-Crafts reaction. So it is not given by the aniline. Okay, thank you.